ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ہماری آیت نمبر 137 ہم نے پڑھی ہے سورۃ آل عمران کی. ابھی بہن نے پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں پہ سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو تحقیق خالات گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی امتیں کئی طریقے فسیرو پس تو چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظرو پھر دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت یعنی انجام المکذبین جٹلانے والوں کا. تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں یعنی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تو تم زمین کی سیر کر کے دیکھ لو کہ جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. یعنی کہ شہادت اور بشارت دونوں ہی گواہی بھی دی جا رہی ہے اور خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ جو مان جاتا ہے اور اس کو تسلیم کر لیتا ہے بات کو قرآن کی کو اور اسلام کو اس کا انجام کیا ہے اور جو گزر چکے پہلے ان کا انجام کیا ہے جنہوں نے جٹلا دیا تھا. کیونکہ یہ احد والے دن کا ہمیں کیونکہ احد والے دن 70 مسلمان صحابی شہید ہوئے تھے نا 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. تو بہت مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی اس بات سے بہت ایک دھچکا لگا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو تسلی ایک دی ہے اور گواہی دی ہے اس بات کی یعنی کہ وہ ٹھیک رستے پر ہے. تو اس سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے ڈارس بنداتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دیندار لوگ مال و جان کا نقصان اٹھاتے رہے ہیں لیکن بلاخر غلبہ انہی کا ہوا جو کہ ایمان والے تھے. تو تم اگلے جو واقعات ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالو چل پھر کے دیکھ لو زمین میں سیر کر لو پتہ چل جائے گا کہ انجام کس کا کیسا ہوا تھا. تو یہ راز تم پر خود ہی کھل جائے گا. تو اس قرآن میں لوگوں کے لیے اگلی امتوں کا بیان بھی ہے یہ ہمیں بتاتا ہے اور یہ ہدایت اور واعظ بھی ہے. ہدایت بھی ہے اور واعظ یعنی نصیحت بھی ہے کہ تمہارے دلوں کی ہدایت اور تمہیں بلائی برائی سے آگاہ کرنے والا یہی قرآن ہے. مسلمانوں کو یہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں بار بار کیونکہ ظاہر ہے کہ تکلیف تھی اس وقت بہت تکلیف تھی نا کہ اتنے ہمارے شہید ہو گئے اتنا ہمارا جانی نقصان ہو گیا اتنا ہمارا مالی نقصان ہو گیا یہ تو ہم گھاٹے میں رہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گھاٹے میں نہیں رہے. کیونکہ یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے تم اکیلے نہیں ہو. کیونکہ نصرت اور فتح تب ہی ہوتی ہے جب انسان کیونکہ نتائج ہم فوراً دیکھتے ہیں نا نتیجہ کیا نکلا اس بات کا نتیجہ کیا نکلا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تسلی دلا رہے ہیں تسلی کے طور پر فرما رہے ہیں کہ تم اس جنگ کے نتائج دیکھ کر بد دل نہ ہو جانا گھبرا نہ جانا غم اتنا نہ کھا بیٹھنا کہ آگے ہمت ہار دو. فتح کا غلبہ فتح نصرت کامیابی غلبہ بلند مقام مرتبہ جو بھی ہے بلا آخر مومن جو ہے مومنو تمہارے لیے ہی. اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں ان کو اور ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں. اگر تمہیں زخم لگے ہیں تمہارے آدمی شہید ہوئے تو اس سے پہلے تمہارے دشمن بھی تو قتل ہو چکے ہیں وہ بھی تو زخم خوردہ ہے. یعنی تو پہلے کیا تھا جنگ بدر میں کیا ہوا ان کے 70 ان کے مارے گئے تھے کفار مکہ کے. اس لیے تو ان کا جو جوش اور ولولہ تھا نا بدلہ لینے کا اس لیے تو اتنا ابھرا ہوا تھا کہ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور ان کو پھر کیا گیا قیدی بھی بنا لیا گیا تھا نا قیدی بھی بنا کے لائے تھے 70 آدمی قیدی بنا کر بھی لائے گئے تھے. تو اب مسلمانوں کے لاپرواہی کی وجہ سے تھوڑا سا ہوا
जिसकी वजह से मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो गए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला मुसलमानों को जो गम पहुंचा उस पर तसल्लियां दे रहे हैं कि ये चढ़ती ढलती छाँव जो है वो कभी उसकी है। हाँ, आखिर में भला वो है जो इंजाम कार गालिब रहे, जिसका इंजाम अच्छा रहे, वो गालिब रहे। और ये हमने तुम्हारे लिए लिख दिया है अल्लाह सुब्हाना ताला कि बाज मरतबा किसी जंग में, जैसे इसी जंग में जंग उहद की में तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि सब्र वालों का और यानी कि सब्र वालों का इम्तिहान लिया गया, जहाँ पे जो कि शहादत की भी आरजू रखते थे, मुद्दतों से वो आरजू कर रहे थे कि हम शहीद हों। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें भी तो कामयाबी देनी थी ना, जो दुआएं कर रहे थे कि हम शहादत पाए, है ना। अगर अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे देते, और जो दुआएं इतनी मुद्दतों से कर रहे थे कि अल्लाह हमें शहीद की मौत देना, शहादत की मौत देना, तो वो फिर उनकी तमन्ना कैसे पूरी होती। तो अल्लाह ने उनकी भी तो तमन्ना पूरी करनी थी ना, उन्हें भी तो कामयाबी देनी थी ना। तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला किसी न किसी तरीके से किसी न किसी का इंजाम जैसे भी होता है उसके करके अल्लाह ताला बताते हैं। किसी की दुआ कबूल हुई होती है वहां पे, जहाँ पे कितनों की दुआएं कबूल हुई कि उनको शहादत का मर्तबा मिल गया। और फिर ये है कि जो नुकसान उठाना पड़ा मुसलमानों को वो तो एक अलग चीज थी। तो अल्लाह ताला कई दफा नुकसान दे के भी हमें समझाता है, नुकसान में डाल के भी अल्लाह ताला समझाता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि सूरत अनकबूत में ये है कि अहस्सा अहस्सा बिन अहस्सा बिन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि हम सिर्फ उनके उस कौल पर के हम ईमान लाए उन्हें छोड़ देंगे, कि सिर्फ कहने पर और उनकी आजमाइश न की जाएगी। तो जहां भी यही फरमान है कि आजमाइश होगी, आजमाइश आएगी, फिर साबित कदमी और जो है उलुल अज़्म जो है इंसान, साबित कदमी जो है अपने इरादे में पक्का इंसान जो है, और अपनी दीन पे पक्का इरादे और कौल और दीन, सभी में पक्का इंसान जो है वो कामयाब होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कामयाब फरमाए। तलवारों के साए तले लाकर अल्लाह ताला हमारा टेस्ट ना करे, अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए में ही रखे, क्योंकि हम इतने कमजोर इंसान हैं कि हम तलवारों के साए तले अपना इम्तिहान है अल्लाह ताला नहीं दे सकते। हम बहुत कमजोर हैं, आज उम्मत मुस्लिमा बहुत कमजोर हो चुकी है। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। ये आयत जो है ना हम करते रहते हैं, मैं क्यों इसमें गई हूँ बहुत ज्यादा, और मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा भी नहीं गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आयत जो है, हम लोग सैरो तफरी करते हैं ना, हम कहते हैं वो तुर्की गए, वो कहाँ कहाँ अब तो जाते हैं, मुझे नहीं पता पर कहाँ कहाँ जाते हैं लोग सैरो तफरी के लिए। आजकल के बच्चे जो हैं जहाँ के, उन्होंने तो एक बना ली हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तो उन्होंने मिलने जाना नहीं है अपनों को, है ना। जी बहुत जी। कम है जो जाते हैं, वो नाम ही नाम नहीं ही नहीं लेते, लेते है ना, पाकिस्तान का। नाम ही नहीं लेते। जी क्यों? क्योंकि उनकी अब वहां से जुड़ी हुई नहीं है, जड़े जी नहीं है उनकी। जी। इस वजह से ना माँ उधर है, ना माँ बाप उधर है, ना सास ससुर उधर है, ना जिनके बहन भाई नहीं है उधर हैं, हाँ ना जी। बहन भाई उधर है, तो वो जड़े ही नहीं है अब उधर। हम्म, तो जिस वजह से वो उनको कोई फिर लगाव नहीं है, तो वो फिर दूसरे मुल्कों में जाते हैं ना सैरो तफरीह के लिए। जी तो क्या देखते हैं जाके? बीचीज, है ना, जी। म्यूजियम्स, और क्या कुछ देखते हैं, मुझे नहीं पता किस मुल्क में क्या क्या है। जो भी जो भी देखते हैं, है ना। तो आसारे कदीमा भी देखते हैं। जी हर मुल्क के कोई ना कोई आसारे कदीमा भी होते हैं, पुराने जमाने के आसार, कुछ ना कुछ। हम कहते होते हैं ना, मुनजदड़ों के जी खंडरात,
पाकिस्तान में है ना, जी मुंजुदड़ू हाँ जी, साहिवाल के इलाके में हड़प्पा है, के पास है। हड़प्पा हाँ जी, वो मैंने हड़प्पा के देखी पास हुई है बाजी, मैंने देखा है। मुंजुदड़ू के। तो हाँ क्या है वो आसार कदीमा के आसार ही तो हैं, कि आसार ही है जी वो। जी तो क्या वो देते हैं हमें, क्या हम सैरत भी देते हैं कि कुछ देते भी हैं, कि इनका इंजाम क्या हुआ, क्यों ये दब गई बस्तियां की बस्तियां उधर जमीन के नीचे, क्यों ये खंडरात में तब्दील होगी, कभी गौर किया किसी ने? नहीं, क्योंकि नहीं। हम तो सिर्फ देख के एंजॉय करके वापस आ जाते हैं, है ना? फिरौन की जो वो डम्मी है उसके टिकटें इतनी महंगी महंगी लेके लोग जाते हैं मिस्र में देखने के लिए उसको। हाँ जी नौजुबिल्ला, वो यानी कि एक नुमाइश उनके पैसा बनाने की जगह जी, हो उन्होंने गई। रखा अल्लाह होगा ताला ने पैसा बनाने इबरत के लिए। के लिए उसे रखा है कि इबरत जी पकड़ो, उसे क्या देखना है इतने पैसे लगा के जाके। जी अगर देखना ही है तो इबरत के लिए देखो कि ये एक काफर का इंजाम हुआ था, अंजाम एक क्या हुआ, है ना, इस इंजाम के ना, एतबार से। तो ना हमने, सलमान का अंजाम क्या हुआ। हाँ हाँ, बच्चे बच्चे भी जाते हैं तो उन्हें देखना चाहिए, उन्हें ये इल्म होगा तो करेंगे ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी जमीन में चल फिर के देखो, फिर के ये भी है कि नेमतों का और मानने वाला और बाकी कितनी खूबसूरत है मेरी जमीन, वो भी है जगह जगह पे। लेकिन जहाँ जी, पे क्या है कि वो फसाद करने वालों का, जिठलाने वालों का इंजाम क्या है, अंजाम इंजाम क्या के हुआ। एतबार से जाके उन जगहों को देखे कि असल में उनका इंजाम जो जिठला चुके, उनका क्या इंजाम हुआ, उनको क्या अल्लाह ताला ने दिया, क्या उनको कोई तगमा पहला। आप सहाबा इकराम थे, है ना, उनके ऑपोजिट उनको ले, सहाबा इकराम को लो, तो उनको किस तरह रहती दुनिया तक उनके नाम इज्जत से लिए जाएंगे, जी उनके उनके कारनामे जो है बड़े फख्र से बताए और जाएंगे, और अपने लिटरेचर में पढ़ाए जाएंगे, लिटरेचर में पढ़ाए जाएंगे, अपने जो भी मिसालों में दिए जाएंगे कि मिसाल उनकी दे, है ना। लेकिन उनके ऑपोजिट अबू जहल है, हैं? अबू जहल ने, जी वो जो ये मुगीरा, जी है ना, वो सारे ले, उनको क्या क्या उनको इज्जत से याद करते हैं लोग, कभी भी नहीं उनकी नहीं मिसाल देते, जी, है ना। तो ये नाम है, तक लेना गवारा नहीं करते नाम हैं। तक लेना नहीं, किसी का नाम अभी तक अबू जहल रखा किसी ने? नहीं कभी नहीं किसी का नाम सुना सुना अबू जहल, जाहलों का बाप। उसका नाम अबू जहल नहीं था, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुनीयत दी थी, जाहलों का बाप। नाम उसका कुछ और था, ठीक है, क्योंकि अच्छा अरबों के नाम तो गुम हो जाते थे, जैसे अबू हरैरा का नाम और था, जी अबू बकर का नाम और था, उनका नाम ये नहीं था, उनका नाम अब्दुल्ला था, अबू बकर का नाम, असल नाम उनका अब्दुल्ला था। इस तरह हम हमें पता ही नहीं है उनके नामों का, क्योंकि उनकी कनीयत के पीछे ही बंदा चला जाता है, ठीक कनीयत हो या गलत हो। तो वो अबू जहल को उनका नाम जो था अल्लाह के नबी ने दिया था, अबू जहल। तो इसलिए हमें जो भी काम हम करते हैं कुरान की तरफ है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम टाइम लगा रहे हैं तो अल्लाह बेइंसाफ नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह उस टाइम का जरूर हमें बदला देगा इंशाल्लाह। कुरान के ऊपर टाइम लगा रहे हैं तो बदला जरूर मिलेगा। तो आगे वाली आयत है, कौन बहन पढ़ेगी इंशाल्लाह? मैं पढ़ी बात। पढ़े प्लीज। हाजा हाज हाजा बयानुल लिन्नासी व हुद्दम व मुइज़ातुल लिल वाहुद्दम है, वहुद वहुद वहुद्दम दम वही मैं कह रही है ना, हुद्दम कैसी है, दाल के ऊपर शद है, नहीं वहुद्दम वाहुद वहुद्दम नहीं, आप वहु जेंटली कहें वहुदम वाहुदम, वहुदम वाहुदम, वहुदम व मुइज़ातुल लिल मुत्तकीन मौईदा, मौ मौईदातुन। मौइज़ातुल लिल आप मुत्तकीन रा को भी खींच रहे हैं, मौइज़ मौईदातुल लिल मौइज़त मुत्तकीन। मौइज़ातुल लिल मुत्तकीन इसको देखिए, हम दोबारा पढ़े इसको, काफी गलतियां हैं इसमें। हाजा बयानुल लिन्नासी व हुद्दल लिल
वहुदम अभी भी आपके उसको लग रहा है शायद वहुद सख्ती दे रहे। वहुदन वहुदौआ व- वहुदौआ वहुदम वहुदौआ वहुदम व मुईज़ातुल लिल व मऊ मुत्तकीन मुंह नहीं है, व मऊ इज़त व मऊइज़ातुल लिल मुत्तकीन व मऊ इज़तुल तुल्लिल व मऊ इज़ा ज़ा मऊइज़ातुल लिल मुत्तकीन मुत्तकीन। मुत्तकीन जहाँ पे मऊ ई ज़ा मऊ ज़ा ज़ा, आप मऊइ ज़ा भी कह रहे हैं और उसको थोड़ा सा दूसरा भी यानी कि वो लेटर ठीक नहीं कह रहे, और एक लंबा कर रहे हैं अलिफ डाल के। तो इसका ख्याल रखें आप। व मऊइज़ातुल लिल मुत्तकीन और मुंह को भी, मुंह अब मऊ अपने आप आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, गौर से किया करें इसको, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है फिर हाजा वजाहत ही है हाजा ये बयानुल वजाहत लिन्नासी बयान है, लोग जब वजाहत है। हाँ जी लिन्नासी लोगों के लिए वहुदन और हदायत अभी भी व हुदन आप कहते हैं, हुदन वहुदन हुदन। वहुदन वहुदन और हदायत व मऊइज़ातुल लिल मुत्तकीन और नसीहत परहेजगारों के लिए मौइजा नसीहत होती है, वाज से है, वा वाज, वा आइन और वाइन वा, वाज हम कहते हैं ना, वाज नसीहत करना, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वही है ना? तो जिनको ये जिनको नहीं माना उनके लिए तो बयान है, बता देना है, वाज़िया कर देना है, ठीक है, लोगों के लिए। और हदायत है, हदायत की परहेजगारों के लिए किताब है, नहीं नहीं, नसीहत हाँ हदायत है लोगों के लिए, ये बयान है, जिन वाज़िया बयान है और हदायत है, जो भी लेना चाहे, और जो ले लेता है उसके लिए क्या है, और नसीहत है परहेजगारों के लिए, तकवा बच्चे इख्तियार करने वालों के लिए एक नसीहत है, वाज है। यानी ये कुरान लोगों के लिए बयान सरी है, खुला खुल्लम खुल्ला है, और अहले तकवा के लिए हदायत और नसीहत वाली किताब है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे कौन पढ़ेगा, बहुत कम लोग हैं जो आए हुए हैं आज। बाजी मैं सुन आगे हाँ जी, पढ़ेंगे नहीं। आईफोन से कौन बहना अपने आप को अपने फोन के साथ लाए, माइक के साथ, ठीक है, पढ़े। वला तासिनु वला तहसनु बाला ताहिनू वला तासिनु वला तहसनु तह व तहजानू तहसनु वअंतुम वअंतुमुल आलूना आलौना आलौना इन कुंतुम मुमिनीन इन कुन इख्फा लाइन है, इन कुंतुम मुमिनीन, इन कुंतुम मुमिनीन मुमिनीन। मुमिनीन इन कुंतुम मुमिनीन। ठीक है बस। वला और ना ताहिनु तुम कमजोर पड़ो। या सुस्ती करो, वला सुस्ती करो भी कर सकते हैं ना, कमजोर पड़ो या सुस्ती करो। वला और ना तहजनु तुम गम करो। व अंतुम और तुम ही मुल आलून बुलंद हो। अल आलम होगा फिर, अल मुल आलून आलम नहीं, अल आलून बुलंद हो। लून नहीं है, लौन है। लाउन अल आलाउन बुलंद हो। इन अगर कुन तुम हो तुम मोमिनीन मोमिन। ये आलौन आलान से भी होता है ना, आलान जैसे हम कहते हैं क्या है, अलान करना, ऐलान करना, हमने है ना, बुलंद होना। तो आवाज आलान करते हैं तो क्या होता है, आवाज को बुलंद करते हैं तो बुलंदी होती है उससे भी आप याद रख सकते हैं बात को। अगर हो तो मोमिन, तो क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, मोमिनों को झंझोड़ रहे हैं जहां पे भी अल्लाह ताला,
ठीक, है ना। हाँ जी। और इसका तर्जुमा करें। बाजी वो मैं दूसरा पारा इसमें सिर्फ यही है, लफ्जी ठीक तर्जुमा है, है वो। और देखो, बेदिल ना होना यानी हिम्मत ना हारना और ना किसी तरह का गम करना। अगर तुम मोमिन हो यानी सच कहते हो कि तुम मोमिन हो, सच्चाई वाकई ही अंदर है, तो तुम ही गालिब रहोगे। गलबा किसका होगा? तुम्हारा ही। यानी अब तो इतने शहीद हो गए हैं, लेकिन आखिर इंजाम कार तुम्हारा ही अच्छा होगा, अगर तुम अपनी बातों में सच्चे हो, यानी के ईमान में पक्के हो, है ना। तो ऐसा ही होता है ना, जो इंसान सच्चा होता है ना, दुनिया उसे लाख भी जिठला रही हो, ये दुनिया के मामलात की मैं बात अब करने लगी हूँ, लाख भी जिठला रही हो ना, कई दफा उसको ये होता है कि एक बंदा भी नहीं मान रहा कि मैं सच बोल रही हूँ, है ना। सारे जी मुझे झूठा समझ रहे हैं, एक भी नहीं मान रहा, एक को भी नहीं तसल्ली आ रही कि मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो आपकी सच्चाई की खुद गवाही देते हैं कि आपने सच कहा था उस दिन। एक दिन आता है वो सच बोलता है खुद ही, जी, है ना। तो होता है ऐसे। होता है ना, वो सच खुद ही एक दिन बोलता है, फिर लोग खुद ही, वही लोग आके कहते हैं कि आप सच्चे थे, हमें नहीं पता चला, हमने आपको झूठा मान लिया, हमने आपकी बात पे यकीन नहीं किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता फरमाए। कई दफा आप ना सच्चे होने के बावजूद, जो आगे वाला इंसान है ना, कई दफा इंसान अपने अल्फाज वो नहीं ला सकता, उसके पास नहीं हिम्मत होती, वो जब वो उसको उस वक्त वो कन्वे नहीं कर पाता अपना मैसेज जो होता है, तो दूसरा आगे सामने वाला उसको झूठा समझ लेता है ना। सामने वाला कहता है कि झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, इसलिए इसके पास अल्फाज नहीं है, इसलिए आपकी वो अपनी बात बदल रही है। असल बात ये होती है कि वो कन्वे नहीं कर पा रही होती। लेकिन सच्चे इंसान की हमेशा सच्चाई जो है उसके साथ होती है, और अल्लाह ताला उसकी गवाही देते हैं, अल्लाह ताला दिलवाते हैं वो गवाही फिर दुनिया में ही। तो जो किसी को धोखा नहीं देता, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको उसका इंजाम दिखाते हैं दुनिया में, लोगों के सामने लाते हैं उसको। लोग फिर हम इंशाल्लाह वो बिलीव करेंगे एक दिन उसके ऊपर। लेकिन ये है कि डटे रहे, अपने अपने आप को धोखा न दे, अपने ईमान को धोखा न दे, क्योंकि रब को तो धोखा नहीं दे सकते आप, ना मैं, है ना। अपने आप को ही असल में धोखा दे रहे होते हैं। आपदा बहन, आप आगे वाली आयत पढ़े। जी सिस्टर। إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لا يحب الظالمين. لا يحب الظالمين. अगर यमससकुम पहुंचे तुम्हें क़रहुन ज़ख्म, पास तहकीक पहुंचा है कौम को क़रहुन ज़ख्म, इसकी मसल या उसकी जैसा है ना, उस जैसा, हाँ। उस जैसा, हाँ जी। वातिल का, और ये अय्याम दिन है, बदले का, नुदाबिलुहा बदले का, बैना नहीं 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 दरमियान। नहीं 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 नहीं, बदले का नहीं, नुदाविलु बदलते हैं, फेरते हैं, अच्छा जी, हाँ उसको। बदलते हैं उसको बैनन्ना से लोगों के दरमियान। ये देखे तिल का आया है, जाली का नहीं आया, क्योंकि तिल हाँ का जो जी, है मुअन्नस के लिए आता है। जी, हाँ तो जी, इसका मतलब है तिल अय्याम जो है वो क्या है,
दिन है। जे मुअन्नस है ना। बोनस है, हाँ जी। और फिर नुदाविलुहा आया है, नुदाविलुहु नहीं आया, हाँ ठीक है। जी, हाँ तो हो गया, वो इंजाम ही है, जो वक्त जो होता है, जो गुजरती बदल, घड़ियां होती हाँ हैं जी बदलता वो, रहता है। क्योंकि दिन दिन क्या है, हमें नजर तो नहीं, कोई चीज हमारे सामने है तो नहीं जो हमें नजर आ रही है, कि गुजरता हुआ टाइम ही है ना। जी टाइम जी पीरियड क्या होता है, जमान, है ना, जी वो होता है, जमाना होता है जो गुजर रहा होता है। तो ये दिन जो है, अल्लाह ताला फरमाते हैं तिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, और ये दिन है हम बदलते रहते हैं इनको, इसको लोगों के दरमियान, हाँ जी यानी हम इनको दो लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, क्योंकि ये अय्याम जो है ना, जी ये जमा है। तो लेकिन इसके लिए तिल का जो है वाहद आई है, तो हमने पढ़ा था कि जब गैर आकिल की जमा आएगी तो उसके बाद उसके साथ वाहिद मुअन्नस का सीगा आएगा। जिन बहनों ने अरबी ग्रामर पढ़ी हुई है मेरे साथ, जी जी है बाजी, ना, हाँ जी याद जी कर ले उसको, है ना। जी हाँ जी। जब गैर अकल की जमा आएगी तो गैर अकल की जमा, हाँ अय्याम जी गैर अकल की जमा है ना, यौम की जी जमा जी अय्याम है। जी जी तो इसलिए उनके साथ तिल का आया, और हाँ जी हा आया है, जी जी हुन्ना नहीं आया। जहाँ पे हुन्ना नहीं आया, हा आया है, क्योंकि वो तिल का आया है, तो तिल का की फिर जमीर जो है वो हा है, यानी जी जो जिसकी बात हो रही है वो भी वाहिद है फिर, और मुअन्नस। जी तो ये थोड़ी सी ये इंशाल्लाह ताला जब हम इन चीजों में पढ़ते हैं ना, तो और भी गौर फिक्र का मौका मिलता जी जी है ना। तो वरना तो हम देखें कि ये तिल का क्यों आया है अय्याम के साथ, हा क्यों आया है नुदाविलु का लुहा के साथ, है ना। जी तो फिर सेंस ही नहीं बनता, हम थोड़ा सा भी रह जाते हैं, वो कंफ्यूज होके, चलो आया होगा, हमें क्या पता, है ना। जी तो लेकिन ये हम अगर थोड़ा सा इल्म हो, क्योंकि ये ग्रामर भी इसी कुरान का हिस्सा है, कुरान को समझने में मदद देता है, जी तो फिर हमें फौरन ही याद आ जाएगा कि वो मैंने तुझे पढ़ा था कि गैर आकिल की जमा गैर जब अकल की जमा आएगी है तो जी फिर उसमें वाहिद मुअन्नस का बस अशारा सही इस्तेमाल है होगा, अशारा आएगा ना। तो ये जी अशारा है, तिल का अशारा है, इसमें अशारा है ये। सर, हाँ जी और हाँ जो है वो जमीर की जी है ना, जी उस हाँ मुअन्नस की तरफ इशारा कर रही है। तो ये इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा हमारे अपने दिमाग को दोहराए जी हैं? तो यूं ही दौड़ाएंगे और सो दोहराई रहा है, सो होगी रहा तो है, फिर ही, है ना। तो सो रहा है इंशाल्लाह हम, ताला तो इसको जागने की जरूरत है। जागने की जरूरत है ना। वो क्या है, ये कुछ था, अब एक शेर था जो इसे जिंदा कर दोबारा कुछ थे, ये मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल का था कुछ, ये दिल मुर्दा दिल है इसे जिंदा कर दोबारा, कुछ इस तरह, है ना। हाँ जी है, हाँ जी था ऐसे, हम मुझे भी नहीं आ रहा। तो हाँ वो जी यानी कि इसे जिंदा हमें करना है मुद्दत इस कुरान बिल्कुल के साथ इंशाल्लाह ताला। तो ये जब भी कोई इंसान के ऊपर ऊपर नीचे आए ना, इस आयत के इस हिस्से को याद कर ले, जी इस आयत के हाईलाइट करें, अपनी जिंदगियों में लाएं इसे, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं लिया वालिया अलमल्लाहुल्लज़ीन आमनु, हम ये दिन लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं ताकि अल्लाह जान ले कौन लोग ईमान लाने वाले हैं, ईमान किनका पक्का है, कितने मजबूत हैं। जब तकलीफ आ गई तो उधर ही लुढ़क नहीं गए, उधर ही दुनिया में इतना नहीं हो गए कि बस अब खत्म हो गया सब कुछ, बल्कि याद उन्होंने उन्हें आ गया कि ये तो दिन गम के आए हैं, तकलीफ के आए हैं, हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के दिन अल्लाह ताला फेरता रहता बदलते रहते हैं, है, दिन अल्लाह की तरफ बदलते से, रहते हैं ना। अल्लाह की हाँ तरफ जी तो से है, हाँ जी है ना। तो ये निदा अल्लाह सुब्हाना ताला टेस्ट करते हैं अल्लाह इंसानों को, आजमा रहे हैं, हाँ जी कभी किसी प्यारे को लेकर हमसे, कभी किसी कोई बीमारी हम पर लाहिक करके मुसल्लत जी करके, कभी कोई मुसीबत डाल के, कभी किसी जी प्यारे की तरफ से कोई तकलीफ आ रही है तो उससे, तो ये सारे उस वक्त हमें अल्लाह टेस्ट कर रहे होते हैं, किस चीज को, हमारे ईमान को, ईमान का टेस्ट होता है उस वक्त।
हम कितना तो हम जल्दी से बुखला घबरा जाते हैं, जाते हैं जी, घबरा कितना हम जाते हैं जी। बुखला जाते हैं, कितना हम वावेला करना शुरू करते हैं, जी कितना हम जी दूसरों को कोसना शुरू कर देते हैं, जी ये सारी चीजों के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तो टेस्ट है, ताकि अल्लाह जान ले कि ईमान कितना है इनमें, दिल जो ईमान वाले हैं। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और ये भी है कि ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला और बना ले तुम में से गवाह शहीद या शहीद कुछ, जो कि जाहिर है कि अब टेस्ट आया तो जिन्होंने शहादत पानी थी उन्हें रतबा रुतबा मिल गया शहादत का, बड़ा जी मर्तबा है शहादत का, जी जी ताकि उनको शहादत मिल जाए जिनको शहादत का दर्जा मिलना है। इसीलिए आए हैं ये दिन उहुद के, जिसमें इतने लोग शहीद हो गए और बहुत सारे हुफ्फाज भी थे, हाफिज थे। जी वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह पसंद हम नहीं नहीं करता, अच्छा मोहब्बत जालिम से। नहीं करता जालिमों से। जालमों से ये जी मत सोचें कि जालिमों को अगर फतह हुई है किसी वजह से, वो कामयाबी नजर आ रही है आपको उनकी, तो अल्लाह मोहब्बत नहीं करता उनसे, इसलिए नहीं दी कामयाबी कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, बल्कि अल्लाह तुम्हें टेस्ट कर रहा है, जी तुम्हारा टेस्ट है इसमें, ठीक है। जी 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 तो हम भी देखें, अल्लाह ना करे, हम जब कोई वाकई जब गम आता है, कोई मुसीबत आती है, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, वावेला शुरू कर देते हैं, तेरा जी कसूर है, फलां फलां का कसूर है, अगर मैं उधर ना जाती तो ऐसा ना होता, अगर मैं उसको फोन ना करती तो ऐसा ना मुझे सुनना पड़ता, या जो भी है ना। जी जी तो वो फिर हम इधर उधर को कोस के हम बैठ जाते हैं, एंड पे कहते हैं बस अल्लाह की मर्जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। जी एंड पे जो अल्लाह की मर्जी करनी है तो शुरू पे क्यों नहीं अल्लाह की मर्जी कर देते। जी तो शुरू पे अपना जोर लगाते हैं पे ना करते हैं शुरू पे ना, हम तो हर दिल की बंदे भड़ास को निकाल देते हैं ना पहले। जी हर बंदे को इल्जाम वार ठहरा देते हैं, कसूरवार हर बंदे को तकलीफ दे देते हैं, बाद में हम कहते हैं कि बस यही अल्लाह की मर्जी थी, अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि फिर सब्र आता है जी सभी को। तो अपनी सब्र कोशिश हुआ ना, पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र इंद सदमातिल ऊला, सब्र सदमे के शुरू में है, जी उस सब्र के ऊपर अजर है जो सदमे के शुरू में शुरू में है, बाद में तो सब्र आ ही जाता है। जी जी हाँ, पढ़ा था आता हदीस है में ना। हाँ ना, जी पढ़ा था हमने। हाँ जी जनाब। बाद में तो सब्र आ ही जाता है, जी वो तो आना ही है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला दिन जी बदलते हैं ना इंसानों के। जी एक दिन कोई फौत हो जाता है अपना प्यारा, क्या होता है उस दिन, ऐसा लगता है हम जिंदा नहीं रहेंगे इसके बगैर। जी अब तो सब खत्म, खत्म। हाँ जी सब खत्म। अब हमारे को नजर ही नहीं कुछ आ रहा होता, जी कुछ नजर नहीं आ रहा था, सब ब्लैंक है, सब फिक्र लाहिक और सब ब्लैंक हो जाता है। फिर वो दिन दूसरे दिन गुजरता थोड़ा है, जी वो फिर अच्छा दूसरा अच्छा दिन आता है, फिर थोड़ा-सा हम सोच विचार करते हैं ना, फिर उसकी तरफ हम गौर-व-फ़िक्र करते हैं। पहले हम गौर-व-फ़िक्र नहीं करते, फिर जी गौर-व-फ़िक्र करते हैं, फिर उस सोच विचार करके फिर हम उसका प्लानिंग करते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ, थोड़ी-सी अब मुझे तसल्ली हो रही है। फिर तीसरा दिन आता है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन का सदमा दिया है, 3 दिन का दिया है ना, गम मनाना सिर्फ़ 3 दिन का। सोग जो मनाते हैं किसी के जाने पर, सिर्फ 3 दिन का, 3 दिन। 3 दिन का। तो 3 दिन के बाद नहीं, क्योंकि फिर तीसरे दिन तक हमें सब्र आ जाता होता है ना। वो जो पहले जब कोई गया था ना, उसी वक्त जो वावेला किया था ना, वो तीसरे दिन बैठ के नहीं हम करते फिर। जी जी अगर करते हैं तो हम जाहिल हैं, फिर उसी को लाते हैं तो, है ना। तीसरे दिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने तीसरे दिन तक बहुत कुछ समझा दिया होता है हमें, बहुत कुछ नजर आ गया होता है हमें जो पहले नहीं नजर आ रहा था। तो इस तरह हम देखें कि हम अल्लाह हमें सदमा दे के ना आजमाए, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सदमे के बगैर ही समझा दे, जी अल्लाह ताला की अजमत का एहसास हमें सदमे के बगैर ही दे दे, किसी सदमा पहुंचा के ना अल्लाह ताला समझाए, यानी किसी जिस तरह इन मुसलमानों को सदमा पहुंचा और फिर अल्लाह ताला ने बताया ना, क्योंकि ये तो तुम्हारा अपना ही हाथों की कमाई थी, तुमने खुद ही ऐसा किया था,
یعنی کہ تم پر یہ انجام جو اتنا آیا ہے، صدمہ جو پہنچا ہے، اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے خود یہ وقت لایا ہے، تم خود لائے ہو یہ وقت. جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی تکلیف دہ سچویشن سے بچائے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر تمہیں زخم یا شکست پہنچی ہے، دچکا لگا ہے، تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے یعنی بدر میں. اور یہ جی دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دیتا، یعنی ان کی تمیز ایمان والوں اور دوسروں کے منافقین کے درمیان میں پتہ چل جاتی ہے نا. کیونکہ منافقین تو 300 کا لشکر لے کر پہلے ہی ابو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ رستے سے ہی غائب ہو گیا تھا نا، پیچھے لوٹ گیا تھا. تو جو جی باقی رہتے تھے ان کے بھی پھر ہمتیں تھوڑی سی اس نے توڑ دی جب 300 کا لشکر واپس گیا. تو اور تم میں سے گواہ بھی بنا لے اللہ تعالیٰ، تم میں سے شہید بھی بنا لے. اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا. بے انصافوں کو جو انصاف نہیں کرتے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. تو کوئی اور بہن ہے؟ تسنیم بہن آپ آگے والی آیت پڑھ لیں پلیز. باجی کہاں سے شروع کروں میں؟ یہ آیت نمبر 141 ہے، 141. سوری باجی میں کھانا کھا سورۃ آل عمران کی آیت 141 ہے. 41. ہاں جی باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم، ہیم کو بھی پورا کریں نا. ٹھیک ہے، پھر کریں، پھر پڑھیں پھر. اوکے اب میں پڑھتی ہوں. والی یو محیص اللہ، والی یو محی، اس ہا کو لانا ہے باہر. اللہ، صاد بھی موٹا، اللہ کا نام کا لام بھی موٹا. دینا، محی محی صلی الذین آمنوا قل وَيَمْحَقُ ویمحقل الْكَافِرِينَ کافی نہیں ہے، کافی. کافرین ام حاسبتم ان تدخلوا جنت ولما تدخل نا کیا ہے؟ تدخلوا اچھا آپ الجنت. آگے چلے گئے ہیں، اسی اتنی ہے نا، یہ آیت اتنی ہی ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو ختم کریں اب، کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں. ولما يعلم الله الذين ملا الذین ہے، غور سے دیکھیں کیا ہے. بالله الذين جاهدوا منكم جاہدو ويعلم الصابرين. صابرین. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. ماشاء اللہ. اب اس کا ترجمہ کریں. قرآن پاک تو میرا کالا نہیں باجی، پتہ نہیں میں آج کیڑے پتہ نہیں کدھر گئی ہے. سوری باجی میں آج پتہ نہیں گم ہوئی، لوسٹ ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی بہن اس کا ترجمہ کر دے جس کے پاس کھلا ہے قرآن. اچھا باجی وہ آئی نہیں، اپنے سبق تو آیا ہی نہیں اوپر. ہاں جی آج نہیں آیا کیونکہ میرے کوئی پرابلم ہے کمپیوٹر میں، ہاں جی. اوپن نہیں، میری پی ڈی ایف نہیں اوپن ہو رہی. اچھا تو اسی لیے پھر میں نے دیکھا ہی نہیں نا. ہاں میں قرآن پاک میں نکال لیتی ہوں باجی، پر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا. آپ قرآن پاک نکال لیں پلیز. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دور ہے کہیں؟ نہیں باجی میرے پاس ہی
सब कुछ मेरे रूम में ही होता बल्कि निकाल के ही रखा करें अपना कुरान, जब कुरान का लाए हो ना। है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप किस अच्छा मैं निकालती हूँ तो टाइम ना लग जाए। कोई और बहन पढ़ ले उसी हाँ वक्त जी, तक, इतनी देर तक, ठीक है। हाँ जी, मैं मस्जिद चलो कोई और भैन पढ़ ले, मैं कोई बहन इसका तर्जमा कर सकती है, आयत नंबर ऊपर वाली का और इसका बाजी मैं करूँ 41 और 42 का? हाँ जी, कर दें रजिया बहन। वलीयुमस वलीयुमस वाले नहीं है, वलीयुमस वाली वाली। वलीयुमस और ताकि खालिस कर लें अल्लाह अल्लाह मुहस्सा है, अल्लजीना जी मा हिस्सा है। माहिस्सा हम्म, वलीयुमहिस्सा और ताकि खालिस कर लें अल्लाह अल्लाह अल्लजीना उन्हें जो आमनु ईमान लाए वयम हक और मिटा दें अल काफिरीन काफिरों को अम क्या आसिब तुम गमान किया तुमने अन के तदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे अल जन्नत जन्नत में वलम्मा हालांकि अभी तक नहीं या आलम जाना अल्लाह अल्लाहू अल्लाह ने अल्लज़ीना उन्हें जिन्होंने जहादू जिहाद जाहदू किया सॉरी बाजी जाहदू जाहदू जहाद किया मिनकुम तुम में से वयालम और ताकि वो जान ले अस्वाबिरीन सब्र करने वालों को स्वाबिरीन, नून भी पड़े ना। स्वाबिरीन हम्म, सब्र करने वालों को ठीक है। तो ये क्या है फिर न? और ये भी ये मकसूद बाजी था कि अल्लाह ईमान वालों को खालिस मोमिन बना दे और काफिरों को नाबूद कर दे, है ना। और फिर अल्लाह ताला हमें बताते हैं, क्या तुम ये समझते हो कि बेआजमाइश यानी आजमाइश के बगैर बहिश्शत में चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे? आज मुसलमानों का यही दावा है ना। आज मुसलमान हम यही दावा करते हैं ना, तो कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह के कलमा नबी पढ़ लिया सल्लल्लाहु तो अलैहि जन्नत वसल्लम की मिल उम्मत जाएगी में हाँ जी शामिल हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउजुबिल्लाह कुछ लोगों का तो यही है कि वो अल्लाह के नबी बख्शवा देंगे हमें, है ना। लेकिन ये है कि कुछ का अगर अमाल के ऊपर भी है कि अमाल अच्छे करेंगे तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे ना साथ में हमारी। जी तो अगर वो उनका हुक्म लाया हुआ ही ना मानेंगे तो फिर उन्हें क्यों गवाही देनी है? आप चोरियां करें, डाके डालें, आप शिर्क करें, आप झूठ बोलें, आप सब कुछ करें और फिर कहें कि क्योंकि हम अल्लाह के नबी की उम्मत हैं तो अल्लाह के नबी हमें गवाही दे के बख्शवा लेंगे, तो ऐसा आ, लगती है बात ज़हन को, नहीं दिमाग को, है ना? नहीं नहीं लगती ना, नहीं नहीं क्योंकि जबकि हम खुद नहीं ऐसा करते, यानी कि हमारे साथ कोई मामला ऐसा कर रहा हो तो हम उसके साथ ये जवाब नहीं देते कि वो कितना भी बुरा करे, जो वो कुछ मर्जी अपनी मर्जियां करे, बच्चे तक को हम नहीं फिर ये एक्सेप्ट करते उसकी तरफ से हाँ कि जी वो अपनी मर्जियां भी कर लें और फिर हम उसको वो पूरा उसे पूरा सब माफ भी कुछ कर कर दें दें, है ना, हाँ ये नहीं होता फिर, है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला गफूर और रहीम है, लेकिन उसमें इत्काद ठीक होना चाहिए, अकीदा ठीक हो। बाजी मैंने अकीदे की निकाल दुरुस्तगी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर वो कुछ भी काम नहीं आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिफारिश नहीं करेंगे उस इंसान की जिसका अकीदा ठीक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो अकीदे की ना दुरुस्तगी के बिना पर ही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर से पानी नहीं उनसे उन्हें पिलाना दिया जाएगा ना फिर। कुछ उम्मती आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहचानते होंगे, सभी उम्मतियों को पहचानते होंगे उनके कहाँ से? वजू के पानी वुज़ू से। के वुज़ू के उनके चेहरे आज़ा से से।
ना वुजू की अदा से पहचानते होंगे, वो चमक रहे होंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे होंगे उनको आते हुए, तो उनको पीछे हटा दिया जाएगा, वापस मोड़ दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे जी इन्हें आने दो, जी मेरे उम्मती है। तो उन्हें फिर बताया जाएगा। तो जहाँ पे एक और अकीदा आता है, क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे नहीं पता होगा कि ये कौन से उम्मती हैं, कैसे उम्मती हैं। उन्हें बताया जाएगा कि आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम कि इन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद दीन में क्या क्या बिदतें इजाद की, दीन में क्या क्या डाला नया नया। हाँ? तो ये फिर हम कहते हैं नहीं, तो वो हम जहाँ से पकारे वो मदीने में सुने, वो जो हमारी तो मस्जिद में खैर से हर फ्राइडे ही ये शिरक होता है। और वो आराम से औरतें भी, मर्दों का तो मुझे नहीं पता, औरतें भी आराम से खड़ी तज़ीम के साथ उस शिर को एक्सेप्ट करके साथ में पढ़ती भी हैं। कभी नहीं गौर करते कि इसमें शिर्क कितना बड़ा पाया जा रहा है। पुकारे हम नबी एक तो सबसे पहले पुकारना किसको है? अल्लाह अल्लाह को, की जात को, है ना? ताला को, अल्लाह की अल्लाह जात को ताला को। पुकारना है। जी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पुकारना। क्यों? क्योंकि वो जिस वक़्त वो ज़िंदा थे, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आकर मसाइल बयान करते थे कि हमारे ये मसाइल हैं। तो उनको उनका बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि वही का इंतज़ार करते थे, खामोश हो जाते थे, बात सुनते, मसला सुनते और खामोशी इख्तियार करते। जहाँ तक कि वही ना आ जाती, जहाँ तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके बता ना देते मसले का हल। तो अब वो तो मामला नहीं हो रहा ना, ना अल्लाह के नबी मौजूद है हमारे सामने, जी जी ना हम उन्हें जाके अपना मसला बता सकते हैं, ना ही उन पर वही उतर रही है जो कि हमें अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट पता चल जाए, उन्हें पता चल जाए और वो हमें बता दे, है ना? तो वो फिर क्या कहते हैं, हम जहाँ पकारे वो मदीने सुने। सॉरी बाजी, आपकी बात जो कि वो जाकिर नाइक से किसी ने सवाल किया था ना काफी अरसा पहले, हम्म। कि उन्होंने कहा कि इस वक्त अब दरबारों से तो क्या कहीं हजूर पाक से भी नहीं मांग सकते किसी से नहीं नबी मांग सकते इस वक्त, जी। किसी से, क्योंकि तो अल्लाह के नबी उसके सल्लल्लाहु अलैहि पर वसल्लम जिंदा उस नहीं पर है। इतना बंदों ने कि कुछ कुछ लोगों ने कहा कि ये काफर है, ये ऐसा हाँ है वही है वैसा ना, क्योंकि है। जब जब कह देगा तो जाहिर है वो सही अकीदा जब बताते हैं ना, तो वो यही फतवे देते हैं, जो वही यही फतवे देते हैं। क्योंकि डॉक्टर असरार अहमद खां, अल्लाह सुब्हाना तआला जन्नतुल फिरदौस में उन्हें जगह दे, जो कोई तौहीद की बात बता देता है, वो तो इस जमाने में उसको काफिर और मुनाफिक और पता नहीं फासिक और क्या कुछ का लकब दिया जाता है ना? उन्होंने यही कह दिया था, कहा जाता है कि उन्होंने कह दिया था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त पिए हुए थे। क्या पिए हुए थे? शराब, शराब के नशे में थे। तो वो लोगों ने इतना कि उन्होंने हजरत अली को ये कह दिया। हालांकि उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, क्योंकि शराब उस वक्त तक हराम नहीं हुई थी और सहाबा इकराम पीते थे और पी के नमाजें भी पढ़ते थे। फिर एक किसी ने नमाज में गलती की तो आया, क्योंकि उसने नशे की हालत में नमाज पढ़ी और नमाज में गलती की, तो फिर वो आयत उतरी कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज ना पढ़ा करो जब तक तुम्हें पता ना चल जाए कि क्या तुम पढ़ रहे हो, है ना? तो फिर जब दीन ग्रेजुअली आया है, जब जो भी हराम होना था एकदम नहीं आ गया, आहिस्ता आहिस्ता आया है। तो वो फिर जब वो पहले वक्त का जमाना जो जो कोई एक्सप्लेन करेगा, तो उसने तो ऐसे ही करना है ना जैसे हुआ था, है जी ना? जी अब उसने अपनी तरफ से ये तो नहीं करना कि भी नहीं, क्योंकि अब नहीं है तो मैं बताऊं ही ना, किसी को पता ही ना चलूं, जी ऐसे तो नहीं है ना। फिर तो वो दीन में तो छुपा हो गया ना, छुपा ली बात दीन से, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आएगी, लोगों का डर रखा, फिर अल्लाह का नहीं रखा। हम्म, तो अब मैं अगर छुपा जाऊं, मैं ये कहूं कि नहीं लोग कर रहे हैं तो इतने लोग कर रहे हैं, मेरे तो सारे जानी दुश्मन हो जाएंगे, मुझे तो वो काफिर और मुनाफिक और किसका फतवा दे देंगे,
है ना। अब मैं इस डर से ये बात ना कहूं, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं तो ये ठीक ही कर रहे होंगे। हाँ, हम जहां से पुकारते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हमारी सारे सवालात भी सुनते हैं और उनके जवाबात भी देते हैं, दूर से ही सुन लेते हैं। हम्म। तो ये हमारे अकीदे में झोल है। जी नहीं। बाजी मैंने जी ये सुना था, जब हम मस्जिद नबी में जाते हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते हैं, तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु हमारे जवाब देते हैं, जवाब उधर देते है, हैं। उधर देते जाके हैं, है, हाँ जी, उधर उधर जाके। देते हैं, हाँ जी। जब आप जाते हैं मदीने में, जब हम्म, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद हराम में जाके अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहते हैं, तो हाँ जी, तब जवाब आता है वहां पे। मतलब हाँ हमें नहीं सुन रहा होता, लेकिन हाँ अल्लाह जी, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं वहां पे। हाँ जी। बाजी पहले मैं सॉरी बात काट, पहले जो लोग थे ना, वो जो जाते थे मस्जिद नबी में, तो छोटे बच्चों को भी साथ लेकर जाते थे, तो अब उन्होंने मना कर दिया, कोई बच्चा 3 साल से नीचे जा ही नहीं सकता मस्जिद में। बच्चों की मैं बात नहीं कर रही, जहाँ पे मेरी बहन बड़ों के जो है ना हाँ अकीदा, जी, अकीदे हाँ में जी, झोल जो है, मैं उसमें बात कर रही हूँ कि हमारे अकीदे जो हैं वो साफ होने चाहिए। अभी तो तौहीद के मसाइल भी हमने पढ़नी है कभी। तौहीद के मसाइल में हम नमाज के मसाइल पढ़ रहे हैं ना, जी जी आज वो भी नहीं पढ़ी गई, क्योंकि मैं बाजी, अभी भी आज खोल के बैठी हूँ, लेकिन बाजी वो वो मैं मेरा उसको ख्याल ऑन नहीं कर पा हाँ रही। जी खत्म हो गई नमाज के बारे में, अब आगे आगे और चैप्टर शुरू हो रहा है ना तहरत का, मेरे नहीं ख्याल। नहीं नहीं, वो नमाज का ही है। ये अच्छा पूरी अच्छा बुक नमाज के मसाइल में से है, क्योंकि अच्छा, जब तक उनको आप खोलते नहीं है, ठीक है, हाँ जी, जब तक उसको आप पढ़ते नहीं है, हाँ जी, पूरा के तहारत कैसे करनी हाँ जी। है ना। नहीं, मेरा मतलब कहने का था कि नमाज के बारे में जो था वो हदीसे खत्म हो गया, अब तहरत के बारे में शुरू होगा ना। हाँ जी, अब मैंने देखा था नमाज, कल। हाँ जी, हाँ नमाज जी, की कल मैंने देखा। फर्जियत और नमाज हाँ की जी, अहमियत की हाँ खत्म जी, हुई है हाँ अभी। जी, वो खत्म हुई है। हाँ फर्जियत जी, क्या है, अहमियत क्या ये और नियत पहले फजीलत नियत क्या का नमाज है ना। हाँ जी, नियत, फजीलत जी, और फिर अहमियत, अहमियत, अहमियत है ना। हाँ जी, अब जी, तहारत अब तो तहरत, हाँ शुरू जी, करनी है ना नमाज, बल्कि खुल गई है अब हमारी। अच्छा अच्छा जी, ये अच्छा। भी अल्लाह करे कि खुली रहे। तो एक नमाज आयत के ही बस मसाइल, रह गई है, हाँ जी, कुरान इसको पाक एक आयत रह गई है तो पढ़े, फिर जी इंशाल्लाह पूरा हो ताला उसी जाएगा को ना। हम हाँ खत्म जी हाँ करते जी, हैं, रुकू पूरा। रुकू खत्म हो जाए। हाँ जी, रुकू। ठीक है, करे। एक और बहन रहती है, आपदा बहन, आपने कर लिया है? सभी ने कर लिया है एक दफा? जी जी अच्छा, ठीक है। कौन बहन आप पढ़ना, कोई है जिसने अभी नहीं पढ़ा? एक आईफोन से, आप, मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिकुमुल्लाह। चलो बाजी मैं ही इंशाल्लाह पढ़ दूं। पढ़ दे। वलाकद कुंतुम तमन्नूना नल मौता मिन कब वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत। वलाकद कुंतुम तमन्नूनल मौता मिन कबली इन तलकू अन अन तलकौहु। तलकू हु व कौ हरू मद लीन इन है। तलकू हु फकद रअयतुमुहु वअंतुम तंजुरून तंजुरून। तंजुरून। हम्म, मैं ਇਹਦਾ मतलब पढ़ूं आज। हाँ जी, पढ़े जल्दी से प्लीज। हाँ जी। वलाकद और अलबत्ता तुम तमन्ना तमन्नूना तमन्ना करते थे, यही है बाजी। तमन्नौना, हाँ, तमन्ना सही है। तमन्नूना तमन्ना करते थे नल मऊता मऊत की मिन मऊत की मिन कबली से आबादी इससे पहले। इससे पहले, इससे कबल से कबल हम्म, अंतल कऊ के तुम उससे मिलो
अन तलक़ऊहु, तुम उससे मिलो, तुम यानी उससे कि वो मिलो। मुलाकात करो, यानी मौत आ हाँ। जाए फिर। फ़क़द रअयतुमूहु, तुम अब तुमसे तो अब तुम उसे देख लिया, तुमने उसे देख लिया। व अंतुम, और तुम तंजुरूना, देखते हो। तंजुरून, तुम देख रहे थे। तंजुरून, तुम और तुम देखते हो। इथे लिखा है। देखते हो, चल ठीक है। हाँ जी। और अलबत्ता तुम उससे मिलने से कबल मौत की तमन्ना करते थे, तो अब तुमने उसे मौत को देख लिया और तुम उसे अपनी आंखों से देख रहे हो। यानी कि अब जिनको मौत आनी थी हाँ जी। उनको तुम्हारी आंखों के सामने अब तुमने देख लिया कि क्या यानी कि मौत का हकीकत सामने आ गई, क्योंकि वो तमन्ना करते थे कि हम भी शहादत की मौत पाए, है ना। हाँ। तो अब तुमने देख लिया, वो कुछ लोगों की तुम में से तमन्ना पूरी हो गई। हाँ जी। बाजी जी, आप ये सूरत भी आप डाल सकते हैं, वो जो आपने सूरत बकरा भेजी थी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं डाल दूंगी। डाल तो सकते ये रुकू खत्म हो गया। हैं। जी नहीं बाजी। सिस्टर, हाँ जी हो गया सिस्टर, हो हो गया गया हो है। गया। आगे आगे दूसरा रुकू शुरू हो गया, ठीक है। जी धन्यवाद। तो इंशाल्लाह ताला, तो ये यानी कि जब इंसान पहले मांग रहा होता है कुछ, जब वो उसको असल हकीकत आ जाती, सामने मिल जाता है, सामने आती है वो बात, तो फिर क्या होता है, फिर इंसान जो है कहता है कि जी क्यों हो गया। हम्म? तो कुछ ऐसे ही था ना, कि वो कर रहे थे पहले, और फिर जब हो गया वो सामने सब कुछ, तो फिर कहने लगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ ना। हम भी ऐसे करते हैं ना। तो अब जितने वो शहीद हुए उनके बारे में गम था, बहुत रंज था। 70 सहाबा, चारों तरफ मदीने में बेवा औरतें और यतीम बच्चे नजर आ रहे थे। बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ, और खासकर हुफाज का। इतने वो हाफिज थे, क्योंकि उस वक्त तो कुरान सामने तो नहीं होता था ना। कुरान तो वही होता था जो कि इंसान यानी कि उस वक्त पढ़ लेता था ना, जो उस वक्त उसके सीने में होता महफूज था। होता था, सीने में होता था बस। और तो कुछ नहीं होता था ना उसके पास। तो इसलिए हम, अगर कोई मुसीबत हम खुद मांग रहे, वो मेरे पास हो क्यों नहीं हो, मेरे साथ तो कभी ऐसी नहीं बात हुई। तो जब वो कभी हो गई, तो फिर हम वावेला करना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुई ये बात, है ना। कोई भी बात हो, है ना, कोई भी मसला हो, है ना, पहले हम शोर मचाते हैं, क्यों नहीं, हमें मेरे साथ तो कभी नहीं ये हुआ, मैं तो कभी इसका नहीं, तो लेकिन जब होता है तो फिर क्या गड़बड़ होती है, फिर हम अम, अपने करना शुरू कर देते हैं मावेला के, जी ऐसा हो गया और वो वैसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, फिर हम क्यों कर लेते हैं। तो इसलिए क्यों नहीं करना, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की जो मशीयत है उसके ऊपर फिर सरेंडर कर देना है इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, 1 मिनट में पॉज कर दूं, पहले इसे स्टॉप कर दूं।